Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we know that our first periodic exam is going to start from 7th June Monday. So we shall complete our revision work of English literature in our today's class. So today we shall solve two mixed exercises, exercise A and exercise B of chapter 1st and chapter 2nd, which we have read in our FAD English literature notebook and English literature book as we said. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because today's our class is very important. Okay, let's see exercise A. Exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित questions means प्रश्नों. Answer the following questions. It's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, let's see first number question. Your first number question is what do you think it's a Hadi? Who is talking to Hadi here? First number question is what do you think it's Hadi? Who is talking to Hadi here? What means क्या? Do it's a प्रेजेंट डिफिनेंस टेंस इन अ प्लो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. ओके, प्रेजेंट डिफिनेंस टेंस की प्लो फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है डू. ओके, यू मीन्स आप, थिंक में सोचता होता है स्टूडेंट्स, सोचना या लगना. ओके, इट्स अ मीन्स यह है, हैदी मीन्स हैदी. ओके, व्हाट डू यू थिंक इट्स हैदी? ओके, तो हैदी आपको क्या लगता है क्या है, या हैदी आप क्या सोचते हो कि ये क्या है? हु इज टॉकिंग टू हैदी हियर? हु मीन्स कौन. इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंगुलर फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है. ओके, इट टॉकिंग मीन्स बात कर रहा है. टू हैडी मीन्स हैडी से, हेयर मीन्स यहाँ. हु इज टॉकिंग टू हैडी हियर? यहाँ पे हैडी से कौन बात कर रहा है? ओके, व्हाट डू यू थिंक इट्स हैडी? हु इज टॉकिंग टू हैडी हियर? इट्स मीन कि हैडी आपको क्या लगता है कि क्या है, हैडी आप क्या सोचते हो कि ये क्या है, और हैडी से यहाँ कौन बात कर रहा है. क्लियर? हैडी से कौन कह रहा है? ओके, so stand the answer of this first number question is grandfather is talking to Hadi here. Okay, stand the first number question. It's belong to chapter first grandfather's house, and we have read this chapter first grandfather's house, so we know that the answer of this first number question. Okay, the answer of this first number question is grandfather is talking to Hadi here. Grandfather means Dadaji. It's a present continuous tense helping verb in singular form. ओके, टॉकिंग मीन्स बात कर रहे हैं. टू हैडी मीन्स हैडी से, हेयर मीन्स यहाँ पे. ग्रैंडफादर इज टॉकिंग टू हैडी हियर. यहाँ पर दादाजी हैडी से बात कर रहे हैं. ग्रैंडफादर सेज टू हैडी दैट व्हाट डू यू थिंक इट्स हैडी. ग्रैंडफादर कहते हैं हैडी से कि हैडी आपको क्या लगता है कि क्या है. क्लियर? द आंसर इज ग्रैंडफादर इज टॉकिंग टू हैडी हियर. यहाँ पे दादाजी हैडी से बात कर रहे हैं. क्लियर? Look at the second number question. Your second number question is where am I going to sleep grandfather? Who is speaking to grandfather? Where means कहाँ. am it's a present continuous tense helping verb. I means मैं going में जा रही हूँ. to sleep is सोने के लिए. grandfather means दादाजी. Okay, where am I going to sleep grandfather? दादाजी में सोने के लिए कहाँ जा रही हूँ. who is speaking to grandfather? who means कौन. it's a present continuous and singular form helping verb. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब होती है इज. ओके, स्पीकिंग मीन्स बात कर रहा है. ओके, बोल रहा है. टू ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी से. हु इज स्पीकिंग टू ग्रैंडफादर? यहाँ ये दादाजी से कौन बोल रहा है. ओके, वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर? हु इज स्पीकिंग टू ग्रैंडफादर? दादाजी मैं सोने के लिए कहाँ जाऊँ? ये ग्रैंडफादर से दादाजी से कौन बोल रहा है. क्लियर? Stand the second number question. It's also belong to chapter first grandfather's house, and we have read this chapter, so we know that Hadi is speaking to grandfather. Okay, तो हैदी मीन्स हैदी इज मीन्स है. इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. स्पीकिंग मीन्स बोल रहा है. टू मीन्स से, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी से. हैदी इज स्पीकिंग टू ग्रैंडफादर. इट्स मीन हैदी दादाजी से बोल रही है. क्लियर? हैदी दादाजी से बोल रही है दैट वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर कि दादाजी मैं सोने के लिए कहाँ जाऊँ. क्लियर? ओके, सेंड लुक एट द थर्ड नंबर क्वेश्चन. द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे. व्हाट मीन्स क्या. इट मीन्स है. इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन सिंगुलर फॉर्म. द मीनिंग मीन्स अर्थ. ऑफ मीन्स का हे, HAY हे. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे. हे का अर्थ क्या है. ओके, the answer of this third number question is grass that has been cut and dried. grass means घास. that means जो has been cut. cut means कट चुकी हो. okay, and means और dried means सूखी हुई. okay, dried it's a second form of dried. DRY dry means होता है सूखा. dried means सूखी हुई. clear? it's a second form of dried. The meaning of hay is grass that has been cut and dried. ओके, तो कटी हुई सूखी घास. ओके, और विच द फूड ऑफ गोट. जो गोट्स का फूड होता है, बकरियों का जो फूड होता है. ओके, जिसे बकरियाँ खाती है उसे बोलते हैं HAY हे. कटी हुई सूखी घास. द आंसर नंबर थर्ड इज ग्रास दैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड. कटी हुई सूखी घास. क्लियर? वी कॉल हे, उसे अब हे बोलते हैं. Look at the fourth number question. Fourth number question is milk is a countable or uncountable noun. Okay, milk means दूध. It means है. A means एक. Countable means count means होता है गिनना. Able means योग. Countable means होता है गिनने योग्य या गणने योग. Okay, और means या uncountable means होता है ना गिनने योग्य या अगणनीय. Noun means संज्ञा.
मिल्क इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो मिल्क गिनने योग्य या ना गिनने योग्य, या वी कैन से दैट गणनीय या अगणनीय संज्ञा है। ओके, तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, तो हमें ये आंसर में राइट डाउन करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट वी हैव रीड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड आल्सो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। ओके, and we know that nouns that we can be count we call countable nouns। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, ओके, चॉकलेट्स हो गई, बॉल हो गई, टेबल्स हो गई। ओके, तो ऐसी चीज़ें, वो ऐसा प्लेस या ऐसी थिंग्स या ऐसे पर्सन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और नाउन्स दैट वी कांट बी काउंटेड वी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इट्स मीन ना गिनने योग्य संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट शुगर हो गया, हेयर हो गया, ऑयल हो गया, तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है बिकॉज वी कांट नेवर काउंट ऑयल, शुगर, हेयर। ओके, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या होते हैं ना कि हमारी जो लिक्विड चीज़ें होती है जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, जूस हो गया। ओके, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है ना, लिक्विड में सिस्टम से तरल पदार्थ, ओके, पेय पदार्थ, तो वो मोस्टली हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारी जो लिक्विड थिंग्स हो वही सिर्फ अनकाउंटेबल हो, बाकी सारी सॉलिड अकाउंटेबल नाउन्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो सॉलिड थिंग्स होती है वो भी कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ओके, कभी कभी क्या मोस्टली हुई होती हैं, जैसे हेयर हो गया, शुगर हो गया। ओके, शुगर सॉलिड है, हेयर सॉलिड है, लेकिन अनकाउंटेबल होते हैं बिकॉज वी कांट काउंट हेयर और शुगर। क्लियर? तो बस मोस्टली ये होता है कि जो हमारी लिक्विड थिंग्स होती है ना, तरल पदार्थ होते हैं ना, तो ये श्योर होता है कि हाँ लिक्विड थिंग्स हमारी अनकाउंटेबल ही होती है। अब अगर मिल्क की जगह या ऑयल होता, जूस होता, तो भी अनकाउंटेबल ही होता। क्लियर? द आंसर इज मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क ना गिनने योग्य संज्ञा है, मिल्क अगणनीय संज्ञा है। ओके, द 4 नंबर आंसर इज अनकाउंटेबल नाउन। UNCOUNTABLE अनकाउंटेबल नाउन, NOUN नाउन। ओके, look at the question number 5th. Your question number 5th is blank. Ganga is blank important river in India. Okay, गंगा मीन्स गंगा, इट मीन्स है, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रिवर मीन्स रिवर, इन मीन्स में, इंडिया मीन्स भारत। गंगा इज इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, तो भारत की महत्वपूर्ण नदी गंगा है। तो स्टूडेंट हियर वी यूज़ आर्टिकल बिफोर वर्ड्स गंगा एंड इम्पॉर्टेंट। हमें क्या करना है, गंगा और इम्पॉर्टेंट के पहले आर्टिकल का यूज़ करना है। जो ब्लैंक है ना उस पर क्या करना है, आर्टिकल को नोट डाउन करना है। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल पहले ही से ही नोट डाउन है, बट इमेज करे कि आर्टिकल नहीं नोट डाउन है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रीजन डेट वाई एम आई राइटिंग हेयर दी बिफोर गंगा एंड वाई एम आई राइटिंग हेयर एंड बिफोर इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या रीज़न है कि गंगा के पहले दी का यूज़ किया और इम्पॉर्टेंट के पहले एन का। स्टूडेंट वी हैव रीड आर्टिकल एंड वी नो दैट वी ऑलवेज यूज दी बिफोर द वर्ड्स विच स्पेशल नेम विच इट्स ओनली वन। ओके, तो ऐसे वर्ड्स, वो प्लेस नेम हो, पीपल नेम हो, प्लेस नेम हो या पीपल नेम हो या थिंग्स नेम हो, जो सिर्फ ओनली वन होते हैं, सिर्फ एक होते हैं। ओके, स्पेशल होता है, उनसे पहले हम दी का यूज़ करते हैं, टेची दी। जैसे स्टूडेंट सन, इट्स ओनली वन, इट्स स्पेशल नेम, वी ऑलवेज यूज दी बिफोर सन। मून, वी ऑलवेज यूज दी बिफोर मून बिकॉज इट्स अ मून, इट्स ओनली वन एंड इट्स अ स्पेशल, क्योंकि मून जो होता है वो सिंगल होता है, एक होता है और स्पेशल होता है। वैसे जो गंगा है ना, गंगा एक स्पेशल नेम है, एक इट्स ओनली अ वन प्लेस नेम, ये सिर्फ एक वन नेम है इसका। बिकॉज इस टाइम गंगा जो होती है, हम लोग किसी भी सिटी में चले जाए, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में गंगा देखने को मिल जाएगी आपको। लेकिन स्टूडेंट गंगा जो होती है ना, जो गंगा रिवर है, जो बहुत ही एक हॉली रिवर है, ये सिर्फ एक होती है। वो बात अलग है कि हर सिटी में देखने को मिल जाती है क्योंकि बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है। ओके, तो स्टूडेंट हियर वी यूज दी बिफोर दी वर्ड गंगा बिकॉज गंगा इज अ स्पेशल नेम, गंगा इट्स अ स्पेसिफिक एंड इट्स ओनली वन, क्योंकि सिर्फ एक है, विशिष्ट है और स्पेशल है। क्लियर? तो स्टूडेंट हियर वी यूज हियर वी राइट इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक दी, दी एंड our next word is important. Okay, to tell me that what can we use before this word important. Okay, a or n, d, कि हम important के पहले क्या यूज़ करेंगे, a and d. Okay, तो important it's not a specific word, ये कोई विशिष्ट शब्द नहीं है हमारा। ओके, तो दा का तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि important कोई इट्स नॉट ओनली वन, सिर्फ एक नहीं होता है। तो स्टूडेंट वी हैव रीड आर्टिकल एंड वी नो दैट there are 3 articles, d, a, n. Okay, and we called a and article indefinite article. जो हमारे indefinite article होते हैं स्टूडेंट वो a और n होते हैं and we always call the article as a definite article. जो हमारे d article होते हैं उसे हम definite article में से बोलते हैं। ओके, definite article कहते हैं।
तो स्टूडेंट जो हमारे एन होते हैं वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इट्स मीन अनिश्चित कालीन अनिश्चित होते हैं, और जो दी होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, इट्स मीन निश्चित अनिश्चित होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट वी हैव रीड अबाउट दैट ए और एन आर्टिकल, हम ए और एन आर्टिकल के बारे में भी रीड कर चुके हैं, एंड वी नो दैट वी ऑलवेज यूज एन बिफोर द वोवेल साउंड वर्ड एंड वी ऑलवेज यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। हम हमेशा वोवेल साउंड वर्ड से पहले एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज़ करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है ना आर्टिकल ए एंड द का जो टॉपिक है ना, तो मोस्टली ए एन की बात करें अगर हम, तो स्टूडेंट आर्टिकल टॉपिक इज बेस्ड ऑन वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट ओनली वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। जो आर्टिकल जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है हमारा आर्टिकल का, अनुच्छेद का, ये ए मतलब वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के साउंड पे बेस्ड है, ना कि वोवेल और कॉन्सोनेंट पे। ओके, बहुत डिफरेंट है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल और कॉन्सोनेंट में, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हमने देखा कि हाँ हमारे वोवेल 5 होते हैं, ए आई ओ यू, कोई भी वर्ड अगर ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने देखा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तुरंत यहाँ पे एन लिखते हैं ना। नो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आई रीड अगेन, वो स्टूडेंट हमारा टॉपिक आर्टिकल जो है ए एन द का जो टॉपिक है वो हमारे वोवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड पे बेस्ड है। ओके, उसकी ध्वनि पर बेस्ड है, ना कि हमारे वोवेल पे। ओके, सिर्फ देख कर ए एन का फिल नहीं करना है हमें, ए एन का यूज़ सिर्फ देख कर नहीं करना है, ना ही दा का। क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वर्ड होता है उससे पहले रीड करते हैं, उसके साउंड पे जाते हैं कि साउंड कैसे साउंड कर रहे हैं, वोवेल साउंड कर रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, उसके अकॉर्डिंग, उस वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर वोवेल साउंड कर रहा है तो उसके पहले एन का यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं तो उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वी कैन सी दैट स्टूडेंट रीड विथ मी, इंपॉर्टेंट तो आई से स्टार्ट है बट साउंड क्या कर रहे हैं, ई। इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना हम लोग, आई इंपॉर्टेंट नहीं बोलते ना, तो इंपॉर्टेंट ई से स्टार्ट है, एंड वी नो दैट ई इज अवर वोवेल, ये जो होता है हमारा वोवेल होता है, एंड वी ऑलवेज यूज एंड बिफोर वोवेल साउंड वर्ड्स। ओके, चूंकि इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट विद वोवेल साउंड, सो हियर वी यूज एंड बिफोर द वर्ड इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एन के पहले इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट के पहले एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस टाइम हमारा वर्ड है इंपॉर्टेंट आई से स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं कि आई को देखकर हमने यहाँ पे एन किया, हमने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट को रीड किया, इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट को रीड किया तो हमने इस फाइंड आउट किया इंपॉर्टेंट वर्ड इट स्टार्ट विथ ई साउंड, एंड वी नो दैट ई द वोवेल्स। ओके, हम ई वोवेल है, पहले हमने इंपॉर्टेंट को रीड किया, इंपॉर्टेंट ई से स्टार्ट, हमारा वोवेल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ कर दिया इंपॉर्टेंट के पहले। क्लियर? तो स्टूडेंट अवर सेंटेंस बिकम द गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया। भारत में महत्वपूर्ण नदी गंगा, या गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है, गंगा भारत में महत्वपूर्ण नदी है। क्लियर? अवर आंसर 5th नंबर आंसर इज दी कॉमा एन, इट्स मीन फर्स्ट नंबर ब्लैंक पे दी हम यूज़ करेंगे, वी यूज़ दी बिफोर गंगा एंड वी यूज़ एन बिफोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट्स द प्लू फॉर्म ऑफ थीव, THIEF, थीव, थीव मीन्स चोर। ओके, व्हाट मीन्स क्या, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, इट्स मीन है। द प्लू फॉर्म इज बहुवचन ऑफ मीन्स का थीव, THIEF, थीव मीन्स चोर। व्हाट इज द प्लू फॉर्म ऑफ थीव, थीव का बहुवचन क्या है? तो स्टूडेंट वी हैव रीड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड वी नो दैट the rules of singular and plural noun, that how can we convert some word singular to plural noun. Okay, हम लोग singular plural noun लीड कर चुके हैं और हमें ये भी पता है, रूल्स भी हमें लर्न है कि singular nouns को plural noun में कैसे चेंज करते हैं। क्या? तो स्टूडेंट we know that when a word and with F or FE letters, we drop this letter F or FE and एड इन प्लेस ऑफ F और FE VES। ओके, हमारा कोई भी वर्ड अगर F या FE से उसका एंड हो रहा है, ओके, मतलब लास्ट लेटर किसी वर्ड के F या FE है तो हम क्या करते हैं, F या FE को ड्रॉप कर देते, इट्स मीन उसे हटा देते, उसे रफ कर देते। ओके, और F और FE के प्लेस पे VES को ऐड कर देते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट हमारा नाइफ की जगह सपोज दैट हमारा थीव है, THIEF, थीव है ना, तो स्टूडेंट वी कैन सी दैट दिस वर्ड थीव हैज़ फिनिश्ड विद F लेटर। ये जो वर्ड है हमारा थीव, ये F लेटर से फिनिश हो चुका है ना, THIEF, लास्ट लेटर क्या F है। ओके, तो लास्ट लेटर F है। अगर सपोज दैट यहाँ नाइफ होता कि नहीं, फिर नाइफ चाकू, तो स्टूडेंट हमारे जो लास्ट लेटर्स होते वो F ही होते। तो स्टूडेंट हमारा कोई वर्ड अगर F या FE से एंड हो, लास्ट लेटर F या FE हो, तो हम F या FE को ड्रॉप करेंगे, F या FE के प्लेस में VES को ऐड करेंगे फॉर चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स। ओके, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट we can see that this word thief and with F letter, so all student drop F from this word thief and add VES in place of in place of F, then our sentence become then our plural form become of thief is thieves, THIEVES। okay, THIEVES, thieves हो गया। THIEF था ना, F को ड्रॉप किया, F को हटा दिया,
और तो एफ की जगह पे प्लेस पे हमने क्या राइट किया, एफ के प्लेस पे VES, ओके। तो थीव का प्लू फॉर्म क्या हो गया, थीव्स, THIEVES, ओके, THIEVES। थीव मीन्स होता है चोर, थीव्स मीन्स मोर देन थीव, इट्स मीन बहुत ज़्यादा चोर, एक से ज़्यादा चोर, clear? So students, I have explained you all questions of this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Now we are going to read and solve exercise B. So look clearly, your exercise B is fill in the blanks with the correct words. Fill means भरिए, in means में, blanks means रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को, fill in the blanks, it means रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को भरिए, with means say, okay, या साथ में the correct words में सही शब्दों, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, ओके। तो सही शब्दों से खाली स्थानों की पूर्ति करिए, खाली स्थान को भरिए। योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द गोट्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम दी ब्लैंक फुल स्टॉप। गोट्स मीन्स बकरियाँ, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ गोट, गोट की प्लूरल फॉर्म होती है गोट्स, गोट मीन्स होते हैं बकरी, गोट मीन्स होते हैं बकरियाँ, ओके। वर इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लूरल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है। कमिंग मीन्स होते हैं आ रही हैं, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम मीन्स से, ओके। द गोट्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम दी, तो बकरियाँ से नीचे आ रही हैं, ओके। तो स्टूडेंट दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस इट्स बिलोंग्स टू चैप्टर फर्स्ट ग्रैंडफादर्स हाउस एंड वी नो दैट द गोट्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, ओके। जो बकरियाँ थी वो माउंटेन से नीचे आ रही थी, माउंटेन मीन्स पर्वत से नीचे आ रही थी, क्लियर? MOUNTAIN mountain, it's a correct word for the first number sentence. So all stand right here in the first number blank, mountain, MOUNTAIN mountain. Then our sentence become the goats were coming down from the mountain. बकरियाँ पर्वत से नीचे आ रही थी, ओके, बकरियाँ पर्वत से नीचे आ रही थी, क्लियर? Okay, look at the second number sentence. So second number sentence is grandfather sat on a blank looking at the ground. Okay, grandfather means दादाजी, sat it's the second form of sit, sit की second form होती है sat, SIT, sit means होता है बैठना, sat means बैठे थे, okay, SIT it's the second form of sit, clear? ऑन मीन्स पर, ए मीन्स एक, लुकिंग मीन्स देख रहे थे, एट इट्स अ सो अ स्पेसिफिक प्लेस, जो एट ये स्पेसिफिक प्लेस को शो कर रहा है, ओके, बिकॉज वी ऑलवेज यूज एट फॉर सो अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस को शो करने के लिए, विशेष स्थान को शो करने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ग्राउंड मीन्स स्टैंड, फ्लोर या बोल सकते हैं फर्श या जमीन, ओके। ग्रैंडफादर सेट ऑन अ लुकिंग एट द ग्राउंड, इट्स मीन दादाजी एक पर बैठे थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। तो स्टूडेंट वी नो दैट द करेक्ट वर्ड हियर वुडन सीट, ओके, बिकॉज ग्रैंडफादर सेट ऑन अ वुडन सीट एंड लुकिंग एट द ग्राउंड, ओके। जो दादाजी थे वो एक वुडन सीट मीन्स होता है लकड़ी की बनी कुर्सी, ओके, लकड़ी से बनी कुर्सी पे बैठे थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुडन मीन्स होता है लकड़ी से बनी, सीट मीन्स चेयर, ओके, वुडन सीट इट्स मीन लकड़ी से बनी कुर्सी, ओके। ग्रैंडफादर सैट ऑन अ वुडन सीट लुकिंग एट द ग्राउंड, दादाजी लकड़ी से बनी कुर्सी पे बैठे थे और नीचे की ओर देख रहे थे, क्लियर? लुक एट द थर्ड नंबर सेंटेंस, योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज the table was too high for blank full stop, okay. The table means मेज, was it's a past continuous tense in a singular form helping verb, past continuous tense की singular form में helping verb है। The high means too high है, too means होते बहुत, very, okay, high means ऊंची, for means के लिए, okay। The table was too high for, तो मेज बहुत ऊंची थी, किसके लिए? हैडी, ओके। तो स्टूडेंट दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स आल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर फर्स्ट ग्रैंडफादर्स हाउस, ओके। So the correct word is Hadi. So all is written right here in the third number blank, Hadi, HEID, Hadi. Then our sentence become the table was too high for Hadi. मेज बहुत ऊंची थी हैदी के लिए, ओके। स्टूडेंट वी हैव read this chapter and we know that कि grandfather gave his चेयर टू हैदी, की ग्रैंडफादर ने अपनी चेयर, अपनी कुर्सी, अपनी वुडन सीट किसको दी थी? हैदी को सिट करने के लिए दी थी, हैदी को बैठने के लिए दी थी, क्योंकि ग्रैंडफादर तो बहुत बड़े थे और हैदी बहुत लिटिल सी थी, छोटी सी थी। तो वो जो टेबल थी ना, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो रही थी, ओके। द टेबल वाज टू हाई फॉर हैदी, तो मेज हैदी के लिए बहुत ही ऊंची थी, क्लियर? तो स्टूडेंट राइट हियर इन द थर्ड नंबर ब्लैंक, हैदी, HEIDA, हैदी, क्लियर? Look at the fourth number sentence, which is the last sentence of this exercise B. So look clearly, your fourth number sentence is grandfather make the fire and then he cut a big piece off, okay, blank full stop. Grandfather means दादाजी, made it's a second form of make, make की second form होती है made, make means होता है बनाना, made means होता है बनाया, okay। the fire means होता है आग, okay। तो grandfather made the fire, it's mean दादाजी ने फायर को बनाया, it's mean फायर को बर्न किया, फायर को जलाया, okay। एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, ही मीन्स उन्होंने, ओके। कट मीन्स काटा, ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, पीस मीन्स टुकड़ा, ओके। ऑफ मीन्स का। ग्रैंडफादर मेड द फायर एंड देन ही कट अ बिग पीस ऑफ, दादाजी ने आग को जलाया, फायर को बर्न किया, फायर मेड की,
और एक बड़ा टुकड़ा काटा. किसका टुकड़ा काटा था स्टूडेंट? तो चीज़ का. ओके, चीज़ इज द करेक्ट वर्ड फॉर द 4 number sentence. So all students write here in the 4 number blank cheese. CHEESE cheese. Cheese means स्टूडेंट पनीर. ओके, which made by milk, जो मिल्क से बनता है. ग्रैंडफादर मेड द फायर एंड देन ही कट अ बिग पीस ऑफ चीज़. दादाजी ने आग को जलाया और आग को बनाया, उसके बाद उन्होंने चीज़ का एक बड़ा टुकड़ा कट किया, पनीर का एक बड़ा टुकड़ा कट किया. ओके, तो दादाजी ने आग जलाई, आग को बनाया. ओके, आग को बंद किया. ओके, फायर को बंद किया, तब उन्होंने चीज़ का एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा काटा. तो स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल sentences of this exercise B and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B. So student, we have completed our today's topic. We have read and completed exercise A and exercise B. Okay, and I hope you must have understood both exercise A and exercise B. You have no problem in any answer, in any sentence, in any word. Okay, so student, today's your classwork is that note down exercise A and exercise B in your Fair English Literature notebook. It's your 2 days classwork and your homework is that learn exercise A and exercise B from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो classwork क्या आपको एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी एज इट इज़ नोट करना है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में. फर्स्टली बेस CW एंड आफ्टर डेट एंड आफ्टर हेडिंग रिवीजन वर्क एंड आफ्टर एक्सरसाइज नेम एक्सरसाइज ए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एंड लास्ट स्टार्ट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो आपको एज इट इज़ अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज भी दोनों नोट डाउन करनी है. ओके, जब नोट डाउन कर लेंगे एक्सरसाइज तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से ये दोनों एक्सरसाइज लर्न करनी हुई. आज का आपका होमवर्क है. क्लियर? So all students, firstly complete your classwork, note down exercise A and exercise B in your Fair English Literature notebook and send me your work. Yeah, thank you.